हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सही होंगे। और स्कूल भी 19 से ओपन हो चुके हैं। और आज मैं केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पार्ट 5 पार्ट 7 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डेवलप्ड बाय हुंड एंड मुल्केन इन 1932। ठीक है। While an electron in an atomic orbital, it is influenced by only one nucleus. It is influenced by only one nucleus. So atomic orbital is called monocentric. While electron in molecular orbital influenced by two or more nucleus, so molecular orbital are polycentric. मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक होता है, एक ही न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस्ड होता है। और जो पॉलीसेंट्रिक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इन्फ्लुएंस बाय टू और मोर न्यूक्लियस। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोनोसेंट्रिक व्हाइल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक। सेकेंड पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज व्हेन two atomic orbitals combine to form a two molecular orbitals. So one molecular orbital known as bonding molecular orbital and the another is called as anti-bonding molecular orbital. Anti-bonding molecular orbital. So number of molecular orbital is formed is equal to the number of atomic orbitals. When two atomic orbitals combine to give two molecular orbital. So one is known as bonding molecular orbital and other is known as anti-bonding molecular orbital. Bonding orbital are represented by sigma, pi and delta, while anti-bonding molecular orbital are represented by sigma asterisk, pi asterisk and delta asterisk. Bonding molecular orbital has lower energy than that of combining atomic orbitals, and molecular orbital anti-bonding molecular orbital has higher energy than that of combining atomic orbitals. So filling of electrons according with Hund's rule, Pauli rule and Abao rules. अब यहाँ पे एक चीज और आ जाती है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक थ्योरी। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक थ्योरी। सेम पॉइंट्स हैं। व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वन इज नोन एज बॉन्डिंग व्हाइल द अदर इज नोन एज एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन, जे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ two atomic orbitals and anti-bonding molecular orbitals are formed by the subtraction of two atomic orbitals. तो molecular orbital are formed by addition while anti-bonding molecular orbital are formed by subtraction. तो bonding molecular orbital has lower energy while anti-bonding molecular orbital has higher energy. Bonding molecular orbital are represented by sigma, pi and delta, while anti-bonding molecular orbital is represented by sigma star, pi star and anti. अब यहाँ पे हम देखिए किस तरह से ऑर्बिटल को बना के शो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम टू एटम्स लेते हैं, एक एटम्स A, एटम्स B। तो इसका वेव फंक्शन होगा, इनको बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इनको क्या बोलते हैं? तो टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगी, एटम A एंड एटम B। अब यहाँ पे जो एनर्जी जो है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। यहाँ पे हम एनर्जी बना लेते हैं और यहाँ पे देखिएगा जो आपकी ऑर्बिटल्स होगी। तो सबसे पहले आपकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होती है? लोअर एनर्जी होती है। किसके कंपेयर में? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ atomic orbital and anti-bonding molecular orbital are formed by the subtraction of atomic orbital. So bonding orbital has lower energy while anti-bonding orbital has higher energy. तो इनको बोलेंगे molecular orbital. When two atomic orbitals combine to form two molecular orbital, one is known as bonding while the other is known as anti-bonding.
इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका हम ऑर्डर देख ले रहे हैं। तो ऑर्डर के लिए यहाँ पे हम 2 टाइप्स के ऑर्डर होते हैं, एक एटॉमिक नंबर 1 to 7 एंड एटॉमिक नंबर 8 to 10। पहले देखते हैं एटॉमिक नंबर 1 to 7 मीन्स नाइट्रोजन। सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। तो देखिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल लोअर एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग हायर एनर्जी। सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, pi to px bonding of pi to py। so these orbitals are the degenerate orbitals and filling of electron according to Hund's rule। मतलब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अनटिल अनपेयर्ड। तो इनमें जब तक 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। इसके बाद यहाँ पे आता है सिग्मा बॉन्डिंग 2pz। सिग्मा बॉन्डिंग 2pz के बाद आएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और लास्ट में आएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। तो दिस ऑर्डर इज एप्लीकेबल ओनली सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। दिस ऑर्डर इज एप्लीकेबल ओनली सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। ये केवल सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए तक ही होता है, इसके आगे आपके थर्ड पीरियड से नहीं होता। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम जो बता रहे हैं सिर्फ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। अब जैसे आपका एक इसमें हमें जैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है H2 का, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 + 1 दैट इज 2 हो गया। तो सिग्मा बॉन्डिंग 1s2 और सिग्मा तो आपका पूरा हो गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जब निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, यहाँ 2 है तो 2 - 2 दैट इज 1 मींस हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है। इस तरह से हम और भी किसी का निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन और है कि मॉलिक्यूल का कब स्टेबल होगा कब अनस्टेबल होगा। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो मॉलिक्यूल इज स्टेबल। केवल इसी कंडीशन पे मॉलिक्यूल स्टेबल रह सकता है जब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इफ कंडीशन कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। And the third condition, number of bonding electron is equal to number of anti-bonding electrons, so molecule is also unstable। इसमें एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है और कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जैसे He2 does not exist but He2+ exist। तो इसको हम बॉन्ड ऑर्डर से देख सकते हैं। He2 हीलियम एटॉमिक नंबर 2, तो 2 + 2 दैट इज 4। ये कितना हो गया 4 हो गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे सिग्मा बॉन्डिंग 1s2 और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। तो देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी 2 है और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी 2 है। तो अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो 2 - 2/2 दैट इज 0/2 बराबर 0। इसलिए He2 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बट इन द केस ऑफ He2+, तो He2+ का जब हम राइट करेंगे तो इसका आ गया 1+ दोनों हीलियम का हो गया 2 + 2 4, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये कितने का निकल के आ जाएगा 3 का। इसका होगा सिग्मा बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s1। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 है, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ये एग्जिस्ट कर जाता है। और जब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 2 - 1/2 दैट इज 1/2 दैट इज 0.5, इसीलिए He2+ एग्जिस्ट कर जाता है। दूसरी कंडीशन हमारी होती है एटॉमिक नंबर 8 to 7। तो ये जो पहला है तो ये हम इसमें एटॉमिक नंबर 1 to 7 नाइट्रोजन तक एप्लीकेबल कर सकते हैं, Li2 B2 C2 N2। इसके आगे आता है एटॉमिक नंबर 8 to 10। एटॉमिक नंबर 8 to 10 इसके लिए क्या होता है कि ये जो सिग्मा 2pz की एनर्जी px py से लोअर हो जाती है।
तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, फिर सिग्मा 2pz आ जाता है। तो यहाँ पे जे आपका बाद में और यहाँ पे इसकी एनर्जी लोअर हो जाती है और इसकी एनर्जी हायर हो जाती है, किसकी, पाई 2px एंड पाई 2py। फिर सिग्मा, फिर आएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, लास्ट में आ जाता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये केवल एप्लीकेबल है एटॉमिक नंबर 8 to 10। जैसे आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है पैरामैग्नेटिक होता है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। देखते हैं इस आधार पर इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। अगर एटॉमिक नंबर से निकालना है तो सीधे 1s से स्टार्ट करेंगे, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकालते हैं तो इसमें सिर्फ आउटर सेल से निकालेंगे। आउटर सेल चूंकि 2 सेल्स होती है ऑक्सीजन में, तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 + 6 दैट इज 12। तो चूंकि दोनों के फर्स्ट तो पार्टिसिपेट नहीं हो रहे, दोनों ऑक्सीजन एटम के, तो इसलिए के लिख दिया, के फॉर फर्स्ट सेल। अब यहां से स्टार्ट, जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन से होगा तो सिग्मा 2s से स्टार्ट करेंगे, और जब एटॉमिक नंबर से होगा तो 1s से स्टार्ट करते हैं। इतना केवल ध्यान देना है। तो यहाँ पे हो गया सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px, पाई 2py। देखिएगा 2 to 4, 4 to 6, 7, 8, 9, 10। हमें कितने का निकालना है, 12 का। इसके बाद आएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। तो 10, 11, 12। तो 2 unpaired electron present in anti-bonding molecular orbitals. So hence oxygen is paramagnetic। तो यहाँ से हम मैग्नेटिक बिहेवियर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखिए जहां जिसमें एस्टेरिक का साइन बना हुआ है 2, 3, 4। और जब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2, 4/2 दैट इज 2 मींस ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो हम एटॉमिक नंबर 8 to 10 का है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकालेंगे तो 2s से स्टार्ट करेंगे, और एटॉमिक नंबर से निकालेंगे तो 1s से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इनके ऑर्डर में हमें ध्यान देना पड़ता है। और बाकी इसमें कहीं तो हम इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी निकाल सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपने देखा होगा, किसी में सिग्मा लिखा हुआ है, किसी में पाई लिखा हुआ है। px and py orbitals always form pi bond and pz orbital always form sigma bond। मैंने जब सिग्मा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन बताया तो तभी ये चीज बताई थी कि pz orbital always form sigma bond, px and py orbital always form pi bond। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट चीज होती है कि व्हाट इज द मतलब रिलेशन बिटवीन बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये देखिए नई चीज हो गई आपकी। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ, जैसे आपका O2 लिखा है, O2 प्लस लिखा है, O2 माइनस लिखा है, O2 2 माइनस लिखा है, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जब निकालते हैं तो 2 आता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है, इसका 1.5 आता है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2 प्लस का है। उससे कम किसका है, O2 का है। उससे कम किसका है, सुपर ऑक्साइड का है। और उससे कम किसका है, पेरोक्साइड का है, ठीक है। तो जे हो गया 2.5, 2, 1.5, 1। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका है, ये O2 प्लस का। तो बॉन्ड लेंथ इसकी शॉर्ट हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ इसकी शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो इस तरह से हम इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी भी पता कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, molecule is paramagnetic। if all the electron are pairs, molecule is diamagnetic। is that clear? अब इसमें देखिए कोई दिक्कत नहीं है हमें।
अब देखिए उसका बॉन्ड ऑर्डर हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी निकालते हैं, तो वो रिजोनेंस में तो मेरे नेक्स्ट पार्ट में जब मैं रिजोनेंस एक्सप्लेन करूंगा, अभी रिजोनेंस आपको पूरी तरह नहीं आता है तो अभी बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकाला जाएगा उसका। जैसे रिजोनेंस में अगले पार्ट में आपको दे दूंगा रिजोनेंस, तो उसमें आप रिजोनेंस से भी बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसका अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है तो मैं बहुत सिंपल वे पे आपको बता दे रहा हूं, जैसे He2+ का बनाना है। एक तरफ हीलियम एटम हो गया और एक तरफ हीलियम आयन हो गया, तो He2+ हो गए, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए। व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होगा, इसका 1s1 होगा। इसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए और इसमें आपने 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1s है, ये भी 1s है। पहले इलेक्ट्रॉन के तो पहले क्या बनेगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसके बाद बनेगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग लोअर एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग हायर एनर्जी। जब He2+ का बॉन्ड ऑर्डर है तो इसका आएगा सिग्मा बॉन्डिंग 1s2 और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s1। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1। तो इस आधार पे हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बना सकते हैं, चाहे ऑक्सीजन का बनाना हो, N2 बनाना हो, N2+ बनाना हो, सेम इसी वे पे सब आ जाएंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।